Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone number 23314444. And don't forget to prefix 011 before this number if you are calling from out of Delhi. Well, I am your host Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Kumar Mishra. And to answer our listeners' queries today, we are joined in by market expert Shishir Sinha in our studios. Shishir ji, welcome to the show. Thank you very much. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह कार्यक्रम में ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। टेलीफोन नंबर 23314444 पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इस नंबर से पहले 011 डायल करें। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। The headlines: Domestic stocks witness gains of more than 0.5%. Sensex finishes above 61,100 level. Nifty settles near the 18,200 mark. Gold rises above 55,000 rupees per 10 grams for February contracts at the MCX, and Brent crude climbs more than 3% to hover around $86 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में आधे फीसद से ज्यादा की बढ़त। सेंसेक्स 61,100 के स्तर और निफ्टी 18,200 के करीब बंद। एमसीएक्स में फरवरी अनुबंधों के लिए सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 55,000 से ऊपर और ब्रेंट क्रूड की कीमत 3% की तेजी के साथ प्रति बैरल $86 के आसपास। Market Mantra. Market Mantra. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 61,100 स्तर के ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी 18,200 के करीब बंद हुआ है। दोनों सूचकांकों में आधे फीसद से अधिक की बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 327 अंक बढ़कर 61,168 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 92 अंकों की बढ़त के साथ 18,197 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.57% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.84% की बढ़त दर्ज की गई है। Before we move any further, you can call us on our other telephone number, that is 23421050. We repeat, the number is 23421050, and as usual, you have to prefix 011 before this number if you're calling from out of Delhi. And now to the story. The Sensex and the Nifty today closed with gains. Index of top 30 companies at the Bombay Stock Exchange closed above 61,100 level. The Nifty of the top 50 companies at the National Stock Exchange finished near the 18,200 mark. Both the indices added more than 0.5%. The Sensex rose 327 points to finish at 61,168. The Nifty also gained 92 points to settle at 18,197. And in the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index rose 0.57%, while the small-cap index climbed 0.84%. And in the Sensex pack, 21 companies posted gains, while 9 logged losses. Tata Steel was the top gainer, as it added 5.9%, followed by Tata Motors
which gained 1.7%. ICICI Bank rose 1.4% and Mahindra added 1.1%. While on the other hand, Asian Paints declined 0.5%, Titan fell 1.2%, Tech Mahindra slipped 0.7%, and Sun Pharma ended 0.4% down. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 17 sectors logged gains, while 3 fell. Metal sector climbed 2.8% and IT index rose 1.3%. Commodities sector gained 1.2% and services added 1.1%. While on the other side, consumer durable sector fell 0.6%. Healthcare index fell 0.3% and power sector ended 0.1% down. The overall breadth of the Bombay Stock Exchange trade was positive as shares of 2,306 companies gained while 1,304 fell. Shares of 178 companies remained unchanged. And we are joined in by our first caller, Rajesh from Gurugram. Rajesh ji, welcome. Rajesh ji, can you hear us? राजेश जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, अगर आप उसमें कुछ सलाह दे सकें। ये पिछले 6 महीने से ड्रॉप होता जा रहा है, 54 लाख पे था और आज की तारीख में करीबन 14 लाख पे आके रुका हुआ है। आप उस पर कुछ गाइडेंस दे सकते हैं? राजेश जी, सबसे पहले तो नए साल की आपको शुभकामनाएं। और एक बात आपको समझना चाहिए कि बिटकॉइन या जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं, ये एक ऐसा असेट है जिसे कौन जारी करता है हमें नहीं पता है, जिसके पीछे किसकी गारंटी है हमें नहीं पता है, जिसके पीछे कौन प्रॉमिस देता है नहीं पता है। आपको एक अंतर समझना चाहिए कि जो हमारी मुद्रा है, जिसको हम लोग रुपया के नाम से जानते हैं, वो एक फिएट करेंसी है, यानी कि सरकार के हुक्म से जारी किया गया और उसको सॉवरेन बैक्ड कहते हैं। जबकि आप बिटकॉइन या ऐसे किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को देखते हैं, उसके पीछे कोई गारंटी या कोई सॉवरेन नहीं होता है। तो मेरी सलाह आपसे यही होगी कि क्रिप्टो या बिटकॉइन के फेर में ना पड़े। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, उनका आप इस्तेमाल करें। Shishir ji, talking of the Sensex today and the Nifty, of course, are we back from the winter of the last year, as in the closing of the last year, wherein, of course, we know we have a longish kind of a Christmas and a New Year holiday where people are in the mood of holidays, and of course, it is a kind of a history, a tradition that the index would kind of subside a bit. But now, can we see the spring of it coming up in the new year? It's too early to say that we are back to the spring. I would say that since it was the first day and since there were some kind of issues related with the allocation of money for various emerging economy, so we saw some buying. And also remember that during the month of December, market was in a very what you can say oversold kind of situation. Yeah. That means there was an opportunity to buy. So that is a purely buying from the opportunity point of view. At this moment, it is very difficult to say that we are back to the bull run. It will all depend upon that what kind of allocation India and the other emerging economy will see. And within next 5 to 7 days, we will have a clearer picture from the allocation point of view. So at this moment, I'm very cautious on the market, and it is too early to say that we have come back to the bull run. हमारे साथ गाजियाबाद से संजीव जी जो हैं वो जुड़ गए हैं। संजीव जी अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर, फेड ने और आरबीआई ने अपने रेट हाइक के साइकिल को शायद एक तरीके से होल्ड कर लेंगे या फिर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि मतलब चिंता के बादल छट गए और 2023 वुड बी मतलब एक ग्रोइंग ईयर फॉर बोथ द इकोनॉमी? थैंक यू। संजीव जी, एक चीज आपको समझना है कि अभी भी जो हमारा इन्फ्लेशन है वो लगभग 5.6% के करीब है। और अगर आप कहें कि रिजर्व बैंक किस स्तर पर जाकर के होल्ड करना चाहेगा, तो मुझे लगता है कि जो मीडियन रेट है जिसको हम लोग 4% के तौर पे जानते हैं, उसके आसपास में वो होल्ड करता है। तो अभी आप देखेंगे कि फरवरी के महीने में जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होगी, तो शायद हो सकता है कि एक और बढ़ोतरी हमें देखने को मिले और उसके बाद थोड़े समय तक हमें एक कह सकते हैं पॉज बटन जिसको कहते हैं, वो शायद एमपीसी लगाना चाहेगा। क्योंकि विकास की जरूरतें ऐसी हैं कि जहां पर आपको ब्याज दर कम होनी चाहिए। ब्याज दर अगर बढ़ता है तो इसका नुकसान उपभोक्ता के लिए भी है और उद्योग के लिए भी है, और ये स्थिति लंबे समय तक नहीं बना रह सकता। तो उम्मीद करनी चाहिए कि 2023 बेहतर होगा, लेकिन याद रखिए कि जो
जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, विश्व की परिस्थितियां हैं, वो अर्थव्यवस्था के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ये एक खतरे की घंटी है जिसे हमें ध्यान में रखना है। Now, talking of rates, Sanjeev ji, recently, just a couple of days back, we had this uptick in the rates of the small saving schemes. But there have been sort of disappointments for some people who have been invested in the PPF and the Sukanya Samriddhi Yojana. So what, in your view, would have been a pullback so far as these two schemes are concerned by the government? This is the second consecutive quarter when the interest rate on some of the small saving schemes have been increased. And we have a basket of 12 small saving schemes, and in which people are mostly investing in, or rather I say, deposit in Public Provident Fund, National Savings Certificate, and Sukanya Samriddhi. There are two reasons for that. One is, of course, the interest rate is higher than the bank deposit, and the second is a very critical, that's a tax saving thing. Of course, on Kisan Vikas Patra, which gives you return of doubling the money in 10 years. 10 years, there you do not have any kind of tax gain, but the National Savings Certificate, Public Provident Fund, and Sukanya Samriddhi, all these have a tax benefit also involved into that. We need to remember that after RBI raised the repo rate, most of the banks have raised rate on the deposit. So whether we talk about 1 year or whether we talk about 2 year or 3 year, we have seen a good increase in terms of deposit rate. So you cannot have a lower interest rate on a small saving than the bank deposit, otherwise people will go back to the bank deposit. So that was one of the reasons, since it's a market trend that deposit rates are going up, so small saving rates are also hiked. In terms of PPF or Sukanya Samriddhi, since there is added advantage in terms of tax benefit, so if you factor in that particular thing, the effective return will be, even after no change or unchanged, it will be higher. So that could be one of the reasons why they have not raised the rate on PPF or Sukanya, and of course people will be disappointed. इसी बीच हमारे साथ लखनऊ से कॉलर हैं राजा। राजा जी, सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैंने जो है 2012-13 में सहारा बैंक में अपना पैसा जमा किया था, तो 2019 तक का उसका टाइम था, मतलब मिलने का। तो 19 के बाद 20, 21, 22 भी आ गया, 23 भी आ गया है, लेकिन वो पैसा नहीं मिल रहा। बता रहे हैं कि देखो वो कुछ सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके कारण अभी नहीं मिल पा रहा है। तो ये कब तक हम लोगों को पैसा मिल पाएगा? राजा जी, अगर मैं याद कर पाऊं तो पिछले सोमवार को भी आपने इसी संस्था से जुड़ा एक सवाल पूछा था, और हमने आपसे ये कहा भी था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सेबी के पास है, और आप वहां से अगर संपर्क करें तो आपको इस बारे में जानकारी मिल सकती है। एक इसमें डेवलपमेंट ये भी है कि शायद एक हेल्पलाइन भी जारी किया गया है, वो भी आप पता कर सकते हैं। चूंकि हमारे इस कार्यक्रम में किसी संस्था विशेष का नाम नहीं लेते या किसी कंपनी विशेष पे हम चर्चा नहीं करते, तो मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं कि पैरा बैंकिंग या एनबीएफसीज में जहां पे आपका पैसा फंस गया है या फंस जाता है, तो ऐसी सूरत में जो भी उनके रेगुलेटर हैं, चाहे वो आरबीआई हो या सेबी हो, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनके जो शिकायत निवारण केंद्र हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। सुशील जी, जहां तक सोने की कीमतों की बात है जी, तो पिछले 3 महीने में हमने देखा है कि इसकी कीमतें बढ़ी हैं, खासकर दिसंबर में 1600 रुपए के आसपास बढ़ी हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोने में जो हमारे श्रोता जो भी हैं, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका क्या सलाह होगा उनके लिए? सबसे पहली चीज कि मैं ये कहना चाहूंगा कि सोने में, अगर सोना में निवेश करना है तो आप गहना ना खरीदें। गहना में आप भावनाओं का आप समावेशन कर सकते हैं। निवेश की जब बात आती है तो आप बिस्किट खरीद सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले सकते हैं। ये 3 आपके पास विकल्प उपलब्ध हैं। रहा सवाल कीमत बढ़ने का, तो विश्वव्यापी स्तर पर अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे सोने के भाव बढ़ रहे हैं, तो भारतीय बाजार में भी उसका असर हमें देखने को मिला, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। दूसरी बात यहां पर अहम यह है कि अभी जो मौसम है, अभी कुछ समय तक पहले शादियों का मौसम था, और फिर से अब जनवरी में 14 जनवरी के बाद शादियों का मौसम शुरू हो जाएगा, तो एक मांग बढ़ेगी, तो उसका भी एक असर है। और तीसरी बात जो है कि विश्व बाजार की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जब शेयर बाजार और दूसरी जो असेट्स हैं उनके ऊपर अगर निगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो लोग सोने में जाते, क्योंकि सोना सबसे सुरक्षित माना जाता है निवेश के लिहाज से। नेक्स्ट कॉलर इज हसमुख फ्रॉम मुंबई। हसमुख, या नमस्ते मार्केट मंत्र। नमस्ते, सवाल पूछिए। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी द होल टीम। जी, हैप्पी न्यू ईयर। सवाल पूछिए। सब यहाँ से 2023 में एक
यहाँ से शेयर मार्केट पे कौन से सेक्टर्स आप बता सकते हो कि जो ग्रोथ को लीड करेंगे यहाँ से 2023 के लिए? हसमुख जी, सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। और जहां तक सवाल है क्षेत्र विशेष का, तो वित्तीय सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संभावनाएं काफी अच्छी हैं। और खासतौर पे अगर मैं पब्लिक सेक्टर के फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की बात करूं तो उसमें संभावनाएं अच्छी बनती हैं। एक और बात मैं कहूंगा कि ओवरऑल जो पीएसयू बैच है वहां पर भी काफी अच्छी संभावनाएं हैं। तीसरा जो आप एफएमसीजी में देख सकते हैं, जैसे जैसे अगर बाजार में मांग की स्थिति बनेगी तो एफएमसीजी के ऊपर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। डिफेंसिव स्टॉक में ऑफकोर्स आपके पास फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऐसा है जहां पर आप जा सकते हैं, लेकिन किसी एक क्षेत्र को अगर मैं विशेष तौर पे हाईलाइट करना चाहूं तो वो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं वो होंगे। हमारे साथ अगले श्रोता हैं प्रश्न के साथ मुंबई से संजय। संजय जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। नववर्ष मुबारक हो आपको भी। और मेरा सवाल ये है कि पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट में कोई फेरबदल आया है क्या? संजय जी, ये आपके लिए शायद अच्छी खबर नहीं है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जो 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 मार्च 2023 की जो तिमाही है, इस दौरान पीपीएफ पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वो अपने स्तर पर, पुराने स्तर पर ही बना हुआ है। और यही बात सुकन्या समृद्धि के लिए भी लागू होती है। इसी बीच एशियाई बाजार की बात कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में ½ की गिरावट दर्ज हुई है। बाकी एशियन बाजार नए साल की छुट्टियों के कारण बंद रहे। यूरोपीय शेयरों में दिन के कारोबार में तेजी रही। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.8% और फ्रांस का कैक 1.3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। लंदन के फुटसी में आज कारोबार नहीं हुआ। Shishir ji, talking of the market, of course, China once again rearing its ugly head with monstrous kind of figures coming up every day. The other day we just heard that in a single day there was a spike of almost 3 crores, something like that. So that is something humongous. So do you really see that the situation could flare up yet again as it was in 2020-21? Of course, we have seen that phase as well. So this time, of course, God forbid, we are in a much better insulated position, as we can say, with better vaccination and other things. So how do you see the markets globally reacting to it? And of course, it will have a trickle-down effect on our domestic markets as well. So how do you see that? One thing which is slightly positive, I would say, that China has not gone for that kind of lockdown which it had in 2021. Mm-hmm. So does this mean that supply chain will not be affected? It will be affected because the kind of numbers we are seeing, the positive cases number we are seeing, that is going to affect the manufacturing facility. And we all know that China is the leading player in the global supply chain. So any kind of economic disruptions in that particular country will have an impact on the overall global supply chain. Now, what does it mean for India? Since India depends upon number of raw material from China, if we just take the example of pharmaceutical industries which need artificial APIs. Yeah. So for active pharmaceutical ingredients, you have the biggest source, that is the China. True. So any kind of supply disruptions from China in terms of API will have the impact on the pharmaceutical industry in India. Correct. And India cannot be isolated from entire development, because whatsoever you are getting as the raw material, if there is some problem in terms of supply of raw material, your manufacturing will also be affected. One. Second, globally, Europe is in what you can say slowdown or recession also. UK is in recession. US is in mild recession. So that is impacting the overall export. So on the one hand, there is a supply disruptions of raw material. On the other hand, we are not able to sell because of the recession or slowdown in various countries. So India will be impacted because of the current geopolitical situation and more specifically in China. इसी बीच पश्चिम बंगाल के राना घाट से हम श्रोता हैं समरेश। समरेश जी, अपना प्रश्न पूछिए। Yes, sir. Actually, my question is regarding intraday trading. Intraday trading में हम लोग तो कुछ घंटों के लिए सिर्फ पैसा जमा करते हैं, तो इससे कंपनी का कैसे बेनिफिट होता है?
देखिए, कंपनी का नहीं, आप जब इंट्राडे में जाते हैं तो आप एक ट्रेडर के तौर पे होते हैं, एक बिजनेसमैन के तौर पे होते हैं, और वहां पर आप पैसा लगाते हैं, पैसा निकालते हैं, सौदा काटते हैं, सौदा बनाते हैं। तो इसमें कंपनी विशेष से आपका कोई नहीं। यहां पे जो व्यक्ति उस चीज में खरीद बिक्री कर रहा है उसके लिए नफा नुकसान की बात होती है। आप एक बिजनेस के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, जो सामान बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी आपकी स्थिति होगी। कंपनी विशेष पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। Next caller is Ravi from Delhi. Ravi, welcome to the show. हेलो। हेलो रवि जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो। जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछिए। वो ये पूछना है, ये मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में सर क्या डिफरेंस है और कौन सा सेफेस्ट है शरीर में? ओके। देखिए, मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का डेफिनेशन दो तरीके से दिया जाता है। जो एक सबसे कॉमन डेफिनेशन है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पहली जो 100 कंपनियां होती हैं उनको हम लोग लार्ज कैप कहते हैं। जो 101 से 250 तक की कंपनियां होती हैं उनको मिड कैप कहते हैं, और 250 के बाद की जो कंपनियां होती हैं उनको हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं। अगर आप मार्केट के टर्नओवर के हिसाब से सोचें तो लार्ज कैप का जो शेयर होता है लगभग 80% है, मिड कैप का 15% है, और बाकी जो 5% है वो स्मॉल है। अब रहा सवाल कि इसमें से जोखिम किसमें ज्यादा है। देखिए, शेयर बाजार वैसे भी जोखिम का खेल है, तो ऐसा नहीं कि किसी में जोखिम नहीं है, ये है कि जोखिम किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। तो स्मॉल कैप में जोखिम ज्यादा होता है क्योंकि उसमें बहुत तरह की जिसे कहा जाए कि जो जानकारी है उसका अभाव होता है। उसमें दूसरी चीज ये होती है कि उसके जो लिक्विडिटी होती है, यानी कि तरलता जिसको कहते हैं, वो भी काफी कम होती है। लार्ज कैप में तरलता काफी ज्यादा, यानी कि खरीद बिक्री के लिए मौके ज्यादा बनते हैं, उसमें जानकारी भी आपको ज्यादा मिलती है। तो अगर आप शेयर बाजार में आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक लार्ज कैप कम जोखिम का है। जोखिम तो तीनों में है, कम जोखिम की बात अगर करेंगे तो इन तीनों में लार्ज कैप में कम है। इसी बीच एक खबर लेते हैं कि रेलवे ने यात्री खंड में कुल अनुमानित आय में 71% की वृद्धि दर्ज की है। राजस्व अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के 28,569 करोड़ से बढ़कर 48,913 करोड़ रुपए हो गया है। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान आरक्षित यात्री खंड से 2021 की इसी अवधि के दौरान राजस्व 26,400 करोड़ की तुलना में 46% की वृद्धि से 38,483 करोड़ रुपए हो गया, जबकि अनारक्षित यात्री खंड से राजस्व 2021 की इसी अवधि के दौरान 2,169 करोड़ की तुलना में 381% की वृद्धि के बाद 10,430 करोड़ रुपए हो गया। सुशील जी, इस खबर को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, रेलवे के लिए इस समय अगर आप देखें तो अक्टूबर नवंबर का जो समय है, दिसंबर का समय है, इसमें दो चीजें, एक तो कि त्योहारों का मौसम है, काफी ज्यादा संख्या में लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। दूसरा ये है कि इस समय छुट्टियां भी अब शुरू हो गई हैं, तो उसका भी असर पड़ता है आपके रेलवे में जो सफर करने वाले हैं। तीसरी बात जो है कि अगर आप यात्री किराए में देखें तो यात्री किराए में थोड़ा अंतर होता है हवाई किराए से, तो हवाई सफर भी काफी तेजी से बढ़ा है और रेलवे का भी काफी तेजी से बढ़ा है। दूसरी तरफ अगर रेलवे में आप देखें, जिसका एक बड़ा शेयर होता है वो होता है माल ढुलाई का, और आपने जो आंकड़े बताए वो यात्री किराए से जो रकम हासिल हुई है, अगर आप माल ढुलाई की भी रकम को देख रहे हैं तो वो काफी अच्छी रकम है, काफी उसमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और उसका एक संकेत हमें जीएसटी में भी देखने को मिल जाता है, जब आप देख रहे हैं कि लगातार 10 महीने से हमारा लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए के ऊपर की जीएसटी से कमाई हो रही, तो इसका मतलब है कि वस्तु और सेवाएं जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ज्यादा बड़ी मात्रा में पहुंचाई जा रही हैं। उसका भी असर, उसका भी फायदा रेलवे को मिला है। तो रेलवे को दोनों चीजें, यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी और जो माल है उनकी ढुलाई में भी बढ़ोतरी, तो इससे दोनों का असर जो है उनकी आमदनी पर पड़ा है। Meanwhile, we are joined in by our another caller, Gurunath from Thane. Gurunath ji, can you hear us? Okay. Meanwhile, in some other story, the center has proposed a self-regulatory mechanism, mandatory verification of players and physical Indian address for online gaming companies. It has released the draft online gaming rules. The online gaming companies will be covered under the new IT rules 2021 for social media platforms. The online gaming platforms are expected to comply with the laws of the land, including any such laws that relate to gambling. The draft rules envisage
that an online gaming intermediary will observe the due diligence required under the rules. It includes reasonable efforts to cause its users not to host, display, upload, publish, and share an online game not in conformity with the Indian law. Shishirji, this was long pending, I believe, because... And meanwhile, we are, once again, we'll take up this story with Shishir, but meanwhile, we are again joined by Gurunath from Thane. Gurunath ji, can you hear us? जी सर, नमस्कार. We will request you to switch off your radio set before talking. ठीक है सर. Yeah. सर सुनाई दे रहा है साहब? जी सुन रहे हैं. सवाल पूछिए अपना, गुरुनाथ. नमस्कार. जी नमस्कार. सर मेरा क्वेश्चन था ये जो अभी 2023 में मार्केट का क्या बिहेवियर रहेगा, जैसे जो हमारे मतलब चाइना में जो स्थिति है कोविड की, हमारे यहाँ कोई नया वेरिएंट आता है तो, और ये जो रिसेशन की बात की गई है, मंदी है, आर्थिक मंदी जो दुनिया भर में आने की संभावना है और इन्फ्लेशन है, तो कुल मिलाकर मतलब 2023 में मार्केट का क्या बिहेवियर रहेगा? थैंक यू. गुरुनाथ जी हमारे नियमित श्रोता हैं और मुझे कई बार इनसे बातचीत करने का जो मौका मिला है. आज जो इनका जो सवाल है 2023 का, देखिए ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस समय जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही अनिश्चितता के दौर में है. और खासतौर पर मैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करूं तो चाहे वो चीन की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे यूएस की बात, यूके की बात हो या यूरोप की बात हो, सभी जगह पे अनिश्चितता काफी है. तो भारतीय शेयर बाजार को लेकर के भी एक अनिश्चितता तो बनी हुई है. इस समय में किसी भी ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचना कि तेजी होगी या मंदी होगी शायद काफी जल्दबाजी होगी. मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और अगर आपको निवेश करना ही है तो आप ऐसे रास्ते को अपनाएं जो शेयर बाजार के जोखिम को कम करने में आपकी मदद कर सके. सोने की बात कर लेते हैं फिर से एक बार. आज एमसीएक्स में फरवरी अनुबंधों के लिए सोने की कीमत में आज 135 रुपए की तेजी आई. चांदी की कीमत में भी आज 190 रुपए की तेजी आई. अंतिम समाचार मिलने तक सोना प्रति 10 ग्राम 55,150 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जबकि मार्च अनुबंधों के लिए चांदी 69,600 रुपये प्रति किलो कारोबार कर रही थी. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना प्रति औंस $1,826 और 20 सेंट पर तेजी के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी प्रति औंस $24.05 पर नरमी के साथ कारोबार कर रही थी. आज फिर बढ़त दर्ज हुई है सोने में. देखिए सोने को अगर मैं अंग्रेजी में एक शब्द यूज होता है हेजिंग. हेजिंग का मतलब होता है बाड़बंदी. बाड़बंदी का मतलब क्या है कि आप अपने जो कुछ भी पैसा आप लगाते हैं उसको आप किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराते हैं. तो दुनिया भर में ये स्थिति होती है कि जब बहुत ज्यादा अनिश्चितता की स्थिति होती है तो लोग सोने में पैसा लगाते हैं. नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं जो तेजी. और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले 4 साल में या 5 साल में अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूं तो एक वर्ष को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सभी वर्ष में जो बढ़ोतरी हुई है वो शेयर बाजार से ज्यादा हुई है. Moving on to oil, crude oil prices today rose around 3%. The crude prices traded higher as the market is hoping that the relaxation of COVID-related restrictions in China would boost demand for the commodity. Investors also remain concerned about the supply constraints and continued Russia-Ukraine tensions in the year 2023. And in the intraday trade, Brent crude was trading at $85.90 per barrel, while WTI crude prices was at $80.25 per barrel. And we are joined in by probably the last caller of the day, that is PK Banerjee from Shimla. Can you hear us? हेलो, नमस्कार. नमस्कार, सवाल पूछिए. सर जैसे कि बैंक में इंश्योरेंस दी गई कस्टमर के लिए 5 लाख की, जी हमारे 20 लाख जमा एक ही बैंक में, अगर हम 4 बैंकों में 5-5 लाख रुपए जमा कराएं जी सेफ रहते हैं अगर इसका दिवालिया बना जाता है? जी शिशिर जी. हाँ, अगर वो चारों बैंक दिवालिया हो जाए तो आपके लिए 20 लाख का मिलना संभव हो पाएगा, लेकिन एक बैंक की 4 शाखाओं में अगर आपने 5-5 लाख कर रखे तो आपको 5 ही लाख मिलेगा. Right. So thank you, Shishir ji, so much for having come to our studios and enlightened our listeners on all the matters that we discussed today. Thank you so much. Thank you. And before we close, here is a reminder of the headlines yet again. Domestic stocks witness gains of more than 0.5%. Sensex finishes above 61,100 level. Nifty settles near the 18,200 mark.
Gold rises above 55,000 rupees per 10 grams for February contracts at the MCX, and Brent crude climbs more than 3% to hover around $86 per barrel. And that is all in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye. We'll meet again, yet again. Thanks. Market Mantra. Market Mantra.